Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So student, in the previous part of the video, we have solved exercise 3.1 from NCERT book and we have solved up to question number 4 I think, okay? And remaining question I gave you as a homework. So I thought you have done all the homeworks and you are doing now also, okay? So today, what we will do student, we will recall our some memories about trigonometric function and trigonometric ratios, okay? Students, in class 10th you have studied some trigonometric ratios, okay? So what was trigonometric ratios? We know that suppose there is a right angle triangle and suppose it is a triangle ABC and this is acute angle theta, okay? So if this is the acute angle theta, so this will in front of that angle will be perpendicular, this will be our base and this will be our hypotenuse. So in class 10th we have studied 6 trigonometric ratios, okay? The first was sine theta, okay? And sine theta is known as perpendicular upon hypotenuse, okay? This you know already. And here perpendicular is AC and hypotenuse is AB. We all know that because it is 90 degree, the side in front of 90 degree is known as hypotenuse, okay? So this you already know, okay? Similarly, cos theta is equal to base upon hypotenuse, okay? So here base is BC and hypotenuse is AB. Similarly, tan theta you have also studied, okay? And tan theta is basically known as sin theta upon cos theta, which is equal to perpendicular upon base. And here perpendicular is AC and base is BC, okay? So there are these 3 trigonometric ratios, that is sin theta, cos theta and tan theta, and there are 3 more, that is cosec theta, okay? So cosec theta is the inverse of, means reciprocal of sin theta, so it means it is hypotenuse upon perpendicular. Similarly, sec theta is the reciprocal of cos theta, it means it is hypotenuse upon base. And similarly, cot theta, which is the reciprocal of tan theta, is known as base upon perpendicular, okay? So these things you have already studied in the class 10th, okay? This you already know. One more thing you have studied, student, the trigonometric ratios of complementary angles. Like you have also studied like sin theta equal to cos 90 minus theta or cos theta equal to sin 90 minus theta, okay? This you have studied, okay? Similarly, tan theta is equal to cot 90 minus theta and cot theta equal to tan 90 minus theta, okay? And the last one is sec theta equal to cosec 90 minus theta and cosec theta equal to sec 90 minus theta. So these all things you have studied in the class 10th only, okay? This you already know, student. So the purpose of writing these things to recall all the concept of class 10th, okay? So I think you know all these concepts, that is sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, cos theta equal to base upon hypotenuse, tan theta equal to base upon perpendicular upon base, and these are the reciprocal of sin, cos and tan, okay? These angles are known as complementary angles. Sin theta can be written as cos 90 minus theta or cos theta can be written as sin 90 minus theta. Similarly, tan theta can be written as cot 90 minus theta or cot theta can be written as tan 90 minus theta, okay? Now sec theta equal to cosec 90 minus theta and cosec theta equal to sec 90 minus theta. So these all things you have studied in class 10th, okay? So I hope you remember these things. Now student, there are 3 more things which we have studied in class 10th.
like which is also known as trigonometric identities. There were three identities we have used in class 10th. Okay, what were the trigonometric identities? That trigonometric identities first one was sin square theta plus cos square theta equal to 1. Okay, second one is sec square theta minus tan square theta equal to 1, and third one is cosec square theta minus cot square theta equal to 1. These three also you have studied in class 10th. ओके, ये सारी चीजें आपने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ लिया है. ठीक है, सो बेसिकली मैंने ये सब इसलिए लिखा है ताकि आपको पुरानी चीजें याद रहें. ओके, सो दीज आर द मेमोरीज ऑफ क्लास 10th. ओके, now student, after this we will study about the sign of the trigonometric ratio in the different quadrants. Okay, sign of the trigonometric ratio in the different quadrant. Okay, that thing I will tell you. Now see, sign of trigonometric ratios. Trigonometric ratio in various quadrants. Okay, this is the next topic, that we have to check the sign of the trigonometric ratio in the different quadrants. So quadrants is what, student? When you draw two axes like this, suppose this is x o x dash, it is y o y dash. Okay, ठीक है, so this is known as the first quadrant, this is known as the second quadrant, this is known as the third quadrant, and this is known as the fourth quadrant. We all know that. ठीक है, इस साइड में x प्लस होता है, इस साइड में x माइनस, इस साइड में y प्लस, एंड दिस साइड में y माइनस. ठीक है, ये चार क्वाड्रेंट्स होते हैं. तो हमें ये बताना है कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस सारे क्वाड्रेंट्स में आएगा तो उसका साइन क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. ओके, सो हाउ वी विल चेक, व्हाट वी विल डू स्टूडेंट, वी टेक अ सर्कल. ओके, वी विल टेक अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस. यूनिट रेडियस मींस जिसका रेडियस 1 हो. हम O को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस कितना हो, 1 यूनिट. तो सपोज मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया स्टूडेंट लाइक दिस. ठीक है, ठीक है, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस कितना है, रेडियस इज 1 यूनिट सपोज. ठीक है, और मैंने इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे क्या किया, एक पॉइंट लिया, मान लो कोई पॉइंट लिया, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट लिया P. ठीक है, और मैंने उस O को P से ज्वाइन कर दिया लाइक दिस. तो यानी कि OP जो होगा उस सर्कल का रेडियस होगा, और मैंने एज्यूम किया है कि इस सर्कल का रेडियस कितना है, 1. ठीक है, अब मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं स्टूडेंट, आई एम एज्यूमिंग दैट एंगल POX इज व्हाट, थीटा. सपोज मैंने थीटा एज्यूम कर लिया. ठीक है, मैंने थीटा एज्यूम कर लिया, सपोज मैंने कर लिया ये एंगल, तो मैंने लिख लिया लेट एंगल POX इक्वल टू थीटा. सपोज मैंने मान लिया, और रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है, रेडियस ऑफ सर्कल इज 1 यूनिट. ठीक है, और मैंने यहां एक पॉइंट P मान लिया. अब मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, इस पॉइंट P से इस OX पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, तो लाइक दिस. ठीक है, सपोज ये राइट एंगल मैंने बना दिया, मान लो ये कोई पॉइंट M. ठीक है, अच्छा मान लो कि ये वाले डिस्टेंस किस डायरेक्शन में आया है, x के डायरेक्शन में ना. ये वाला डिस्टेंस किस डायरेक्शन में आया है, x के डायरेक्शन में. ठीक है, तो मान लो मैं इसको मान लिया x और इसको मान लिया क्या, y.
ठीक है। लेट मैंने एज्यूम कर लिया, लेट OM इक्वल टू x यूनिट एंड PM इक्वल टू y यूनिट, ठीक है। अब ध्यान दो स्टूडेंट, अगर आपको बताना हो कि व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, अगर इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बताना हो तो क्या बताओगे? पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो मान लिया हमने x, y होगा, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, तो x में ये इतना डिस्टेंस और y में ये इतना डिस्टेंस है, तो यानी कि P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x, y होगा, ठीक है। अब करना क्या है आपको स्टूडेंट, सपोज आपको इसी पॉइंट P को हर एक क्वाड्रेंट में रोटेट करना है सेम पोजीशन पे, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में x, y है, अगर मान लो मैंने यही वाला पॉइंट ठीक पॉइंट यहाँ ले लूँ उसी डिस्टेंस पर, मान लो ये P डैश है, ठीक है, और उसको भी ऐसे ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, और यहाँ से एक सेम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ इस वाले पे ऐसे, ये मान लो n है, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये वाला डिस्टेंस NO कितना होगा? NO किस डायरेक्शन में है? नेगेटिव x एक्सिस में ना, तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगी, ये वाले डिस्टेंस, ये -x होगा क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, और y अभी भी पॉजिटिव होगा, ये y, ठीक है। तो यानी कि इस P डैश का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -x, y, ठीक है। सिमिलरली सेम चीज आप क्या करो, थर्ड में और फोर्थ दोनों में करो, वही चीज जो मैंने फर्स्ट और सेकंड में किया। तो अब ध्यान दो स्टूडेंट, हमने क्या एज्यूम किया था, मैंने पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई xy, उसमें ओरिजिन को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया 1 यूनिट का, ठीक है। और हमको ही पता है कि सर्कल का जो रेडियस होगा वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो हमने सर्कल के रेडियस को नेगेटिव नहीं मानना है, सर्कल का रेडियस हमेशा पॉजिटिव होगा। हमेशा हम लोग मानेंगे x और y को पॉजिटिव या नेगेटिव, वो डिपेंड करेगा कि वो किस क्वाड्रेंट में है। आपको ही पता है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन होता है वो प्लस होता है, ठीक है, इसका होता है माइनस, इसका होता है माइनस, और इसका होता है प्लस, ये आपको पता है ना। तो देखो, जब ये पॉइंट P फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो x और y दोनों पॉजिटिव थे। सिमिलरली जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आया तो x नेगेटिव हो गया, y पॉजिटिव है। सिमिलरली जब थर्ड में ये वाला पॉइंट आएगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, -x -y, और यहाँ पे +x -y। अब ध्यान दो स्टूडेंट, हमको बताना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना होगा, ठीक है। मैंने सर्कल का यूनिट कितना लिया था, 1 यूनिट, ठीक है। अब ध्यान दो, आई होप आपने ये सब लिख लिया हो। और ध्यान देना, ये जो POX है ना, ये जो POX है, ये जो थीटा है, ये किस में होगा? ये होगा रेडियन में, ठीक है, रेडियन में होगा। अब ध्यान दो, मैं पहले फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। अगर मान लो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने साइन थीटा लिया, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है स्टूडेंट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा में परपेंडिकुलर PM होगा और हाइपोटेन्यूज कितना होगा? OP होगा। OP को, रेडियस को आप R भी ले सकते हो और रेडियस को आप 1 यूनिट भी ले सकते हो, क्योंकि रेडियस तो चेंज होगा नहीं। तो मैंने यहाँ पर रेडियस को 1 यूनिट लिया था, तो आप ध्यान देना, और रेडियस तो नेगेटिव होगा नहीं। साइन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब आप वो निकालोगे, साइन निकालोगे, तो जब रेडियस लोगे तो रेडियस पॉजिटिव ही होगा। नेगेटिव क्या क्या हो सकता है? x और माइनस, ठीक है। तो आप ध्यान देना, साइन थीटा इक्वल टू PM अपॉन OP आया, और PM कितना है यहाँ पे? y, और OP मैंने लिया है 1। आप 1 भी ले सकते हो और आप R भी ले सकते हो, ठीक है। अब ध्यान दो, साइन थीटा इक्वल टू y, और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव है, तो इसका ये मतलब हुआ साइन थीटा इक्वल टू कितना आया यहाँ पे? y, और चूंकि y यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसका ये मतलब हुआ कि साइन थीटा भी क्या होगा? पॉजिटिव। अंडरस्टूड? क्योंकि देखो साइन थीटा की वैल्यू y के बराबर है ना, तो y अगर पॉजिटिव है तो साइन थीटा भी क्या होगा? पॉजिटिव। तो इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहां से लिख सकते हैं, हेंस साइन थीटा विल बी पॉजिटिव, ठीक है। हमने एक का निकाल लिया, ठीक है, साइन थीटा का हमने निकाल लिया कि पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अभी हमारे पास 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और बचे हैं, ठीक है। अब साइन थीटा निकाल लिए ना, तो अब एक काम करते हैं, अब हम लोग निकालते हैं कॉस थीटा। नाउ कॉस थीटा क्या होता है स्टूडेंट?
cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस यहाँ पर OM है और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर OP है, ठीक है। अच्छा अब देखो OM हमारा x है और OP हमारा क्या है 1, तो यानी कि इसकी वैल्यू भी कितनी आई cos थीटा इक्वल टू x। अब ध्यान दो हम लोग चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव था, y भी पॉजिटिव था, तो cos थीटा की वैल्यू x की बराबर आई है ना, और x पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ बिकॉज x इज पॉजिटिव, इसीलिए cos थीटा विल आल्सो पॉजिटिव। पॉजिटिव को ऐसे भी लिखते हैं ग्रेटर देन 0, क्योंकि जो नंबर 0 से बड़ा होता है वो पॉजिटिव ही होता है। तो इसका ये मतलब हुआ cos थीटा विल आल्सो बी पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा भी पॉजिटिव आया, cos थीटा भी पॉजिटिव आया, ठीक है। अब ध्यान दो ऐसे ही आप कर लो tan थीटा निकाल लो, ठीक है। tan थीटा, तो tan थीटा क्या होगा स्टूडेंट, tan थीटा क्या होता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो PM अपॉन OM, ठीक है। मान लो PM क्या है, PM तो यहाँ पे दिया है y और ये दिया है x। तो अब एक बात बताओ स्टूडेंट, पहले क्वाड्रेंट में y भी पॉजिटिव था, x भी पॉजिटिव था, तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो यानी कि y बाई एक्स भी क्या होगा पॉजिटिव ही तो होगा। जैसे कि मान लो +5 अपॉन +3, तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी आपको वो पॉजिटिव ही तो मिलेगी। तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो इसका मतलब tan थीटा भी पॉजिटिव होगा। सो हम कह सकते हैं बिकॉज x इज आल्सो पॉजिटिव, y इज आल्सो पॉजिटिव, सो tan थीटा विल आल्सो पॉजिटिव, यानी कि ब्रैकेट में लिख लोगे tan थीटा विल आल्सो पॉजिटिव। सो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट, पहले क्वाड्रेंट में साइन थीटा का साइन पता कर लिया, cos थीटा का साइन पता कर लिया, tan थीटा का साइन पता कर लिया, ठीक है, और तीनों पॉजिटिव आए, ठीक है। अच्छा अगर आपको साइन पता है स्टूडेंट तो आपको कोसेक भी तो पता चल जाएगा। अगर आपको साइन पता है तो आपको कोसेक थीटा भी पता चल जाएगा। तो यानी कि कोसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा ना, कोसेक थीटा इज नोन एज 1 अपॉन साइन थीटा। और जब साइन थीटा ही पॉजिटिव है तो क्या कोसेक थीटा पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। और अगर साइन थीटा भी पॉजिटिव है बिकॉज साइन थीटा इज पॉजिटिव, पॉजिटिव को ऐसे भी लिखते हैं, सिंबल में लिखना होगा तो ऐसे लिखोगे और वर्ड में लिखना होगा तो लिखोगे साइन थीटा इज पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो कोसेक थीटा भी क्या होगा पॉजिटिव, या ऐसे लिख सकते हो कोसेक थीटा विल आल्सो बी पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो हमने साइन निकाल लिया, कॉस निकाल लिया, टेन निकाल लिया, कोसेक निकाल लिया, तो क्या बचा, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं कि बहुत इजी है, सेक थीटा। एंड सेक थीटा इज आल्सो 1 अपॉन cos थीटा ना। याद रखना ये सारी जितने भी चीजें हम लोग बात कर रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, और पहले क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव था, बिकॉज cos थीटा वाज पॉजिटिव, सो सेक थीटा विल आल्सो बी पॉजिटिव, सो सेक थीटा विल आल्सो पॉजिटिव, या इसको ऐसे लिख सकते हो सेक थीटा विल बी पॉजिटिव, ठीक है। अब लास्ट बच गया क्या हमारे पास, पांचों हो गया, साइन कॉस टेन कोसेक सेक, कॉड बच गया, ठीक है। तो अब कॉड की बात करते हैं। कॉड थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, वी ऑल नो दैट, एंड बिकॉज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट टेन थीटा इज पॉजिटिव, टेन थीटा इज पॉजिटिव, hence cot theta will also be positive। तो इससे ये पता चला स्टूडेंट, आपने देखा कि जब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन कोसेक सेक एंड कॉट ऑल कम्स पॉजिटिव। तो इससे ये पता चलता है कि जितने भी कॉस टेन कोसेक सेक कॉट थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में उन सभी का साइन क्या होगा पॉजिटिव। तो इसके बाद हम लोग ये लिख सकते हैं हेंस ऑल सिक्स, हेंस
6 trigonometric ratios, that is all 6 trigonometric रेशियो कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, थोड़ा सी राइटिंग खराब हो रही है, आप समझ लेना। ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इससे ये पता चलता है कि पहले क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आते हैं उन सबका साइन क्या होता है? पॉजिटिव। समझ में आया? और एक बात बताओ स्टूडेंट, पहले क्वाड्रेंट का एंगल कहां से कहां तक होगा? अगर हमने आपको बताया था ना, एंगल आप हमेशा कैसे करते हो? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो देखो ये हमारी बेस लाइन है और ये जब यहां से लेकर यहां तक आएगा तो पहले क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां तक होगा स्टूडेंट? पहले क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो होता है 0 से 90 के बीच। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो कहां से कहां तक होता है? 0 से 90 के बीच। 0 भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे 0 और 90 के बीच। 0 से लेकर 90 तक कहां पे अलाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये पहला क्वाड्रेंट हो गया। ऐसे ही बाकी सारे क्वाड्रेंट्स के लिए हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट स्टूडेंट देखो जरा ध्यान से। सेकंड क्वाड्रेंट देखो यहां से लेकर यहां तक है, यहां पे 90 डिग्री है और यहां पे कितना? एक स्ट्रेट लाइन जब बनता है तो कितना एंगल बनता है? 180 ना। तो इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो 90 से 180 के बीच में होता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दैट 90 डिग्री टू 180 डिग्री। अब इसमें बताना है कि इस क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएंगे उनका साइन क्या होगा। ठीक है, ये चीज मैं आपको डायरेक्टली बता सकता था स्टूडेंट, लेकिन मैंने आपको प्रूफ बताया ताकि आप समझ पाओ कैसे हो रहा है। अब ध्यान दो, अगेन सेम चीज, सपोज ये वाला एंगल थीटा है मान लो। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे ही जैसे हमने निकाला था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, वैसे ही करेंगे। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप साइन थीटा निकालोगे, साइन थीटा, तो ये वाला साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो पीएन अपॉन ओपी। ठीक है, पीएन अपॉन ओपी। अब ध्यान दो, पीएन कितना है? y एंड ओपी है 1। ओपी था हमारा रेडियस। ठीक है, ये 1 भी हो सकता, आप 1 भी ले सकते हो या केवल r भी ले सकते हो। ठीक है, बस इतना ध्यान देना, रेडियस हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अब ध्यान दो, साइन थीटा इक्वल टू y आया, साइन थीटा इक्वल टू y आया। ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो y होता है हमारा, मतलब कि जो y वाला क्वाड्रेंट होता है वो पॉजिटिव है ना। देखो ऊपर के डायरेक्शन में है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में y तो पॉजिटिव है, तो देखो चूंकि y इज पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट में sin थीटा विल आल्सो पॉजिटिव, क्योंकि sin थीटा की वैल्यू y पे डिपेंड कर रही है। y पॉजिटिव है तो sin थीटा भी क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं sin थीटा विल बी पॉजिटिव। अब देखो ध्यान से देखो, अगर sin थीटा पॉजिटिव है, अब मैं यहां से अगर मैंने sin थीटा निकाल लिया तो मैं कोसेक थीटा भी निकाल सकता हूं ना। तो कोसेक थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा ना। और अगर sin थीटा पॉजिटिव है स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कोसेक थीटा पॉजिटिव नहीं होगा? होगा, क्योंकि sin पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, पॉजिटिव ही आएगा। तो हेंस कोसेक थीटा विल आल्सो पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां से हमें ये पता चल गया कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो साइन कोसेक हो गया। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो स्टूडेंट, अब कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा क्या होगा यहाँ पे? कॉस थीटा इक्वल टू ON अपॉन OP होगा। ठीक है, ON अपॉन OP। अब ध्यान दो,
ON कितना है -x एंड OP है 1, यानी कि cos थीटा की जो वैल्यू आई वो कितनी आई -x ना। अब ध्यान दो ये cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना, -x आ रही है, मतलब कि इस डायरेक्शन में -x, और यहाँ पे x जो है वो नेगेटिव है। देखो cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव में आई है, तो इससे ये पता चल रहा है यहाँ पे स्टूडेंट कि जो cos थीटा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में वो क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है -x। देखो इस डायरेक्शन में x जो भी होगा वो नेगेटिव ही तो होगा, -4 -3 -5 लाइक दैट। तो देखो cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव आई, तो हम क्या सकते हैं हेंस cos थीटा विल बी नेगेटिव, और नेगेटिव कैसे लिखोगे, cos थीटा विल बी लेस देन 0। इस चीज को सिंबल में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो स्टूडेंट, अगर cos थीटा निकाल लिया हम लोगों ने तो sec थीटा भी निकाल सकते हैं ना। sec थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा, ठीक है। और देखो सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, और देखो sec थीटा की जो वैल्यू है वो cos थीटा पे डिपेंड करती है, उसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अगर cos थीटा नेगेटिव है तो ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव नेगेटिव ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि sec थीटा विल आल्सो नेगेटिव, ठीक है। अगर cos नेगेटिव है तो sec भी नेगेटिव होगा, अगर sin पॉजिटिव है तो cosec भी पॉजिटिव होगा। समझ में आया? अगर एक चीज पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, और अगर एक चीज नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 चीज निकाल लिया, ठीक है, साइन कोसेक कॉस और सेक। अब बच गया 10, अब बच गया 10, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे p, देखो ध्यान दो pn तो y में है पॉजिटिव में, और no कितना है -x, ठीक है। तो यहां से tan थीटा की वैल्यू कितनी आई y/-x। ध्यान दो y पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव, जैसे कि 6/-2, तो जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, आएगा ना। तो इसी तरह देखो पॉजिटिव और नेगेटिव का डिवाइड हमेशा, अगर दोनों सेम साइन के होंगे तो पॉजिटिव होगा, दोनों अपोजिट साइन के होंगे तो नेगेटिव होगा। यहाँ पे दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो दैट्स व्हाई tan थीटा विल बी नेगेटिव, और अगर tan थीटा नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा, यानी कि cot थीटा मैंने बताया है किस तरह विल आल्सो नेगेटिव, ठीक है। तो ध्यान दो सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट क्या क्या हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल 2 चीज पॉजिटिव आई, साइन और कोसेक, ठीक है। सेकंड में 2 चीजें आई, दैट इज साइन और कोसेक पॉजिटिव था, ठीक है, और बाकी सारे नेगेटिव आए, कॉस और सेक भी नेगेटिव, टेन और कॉट भी नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं इन सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव एंड tan थीटा cot थीटा cos थीटा sec थीटा will be negative, okay, will be negative। देखो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव आए थे, सेकंड में फर्स्ट में सारे पॉजिटिव आए थे ना, तो उसको हमने A लिख दिया, ठीक है। A मीन्स ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव। सेकंड में केवल साइन आया था पॉजिटिव, साइन और कोसेक, तो केवल साइन लिखते हैं, तो S आया था पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट जब आप थर्ड और फोर्थ के लिए करोगे, अब वो मैं चीज डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है, उसको भी आप करके दे सकते हो ऐसे, ये वाला पॉइंट नीचे ले लेना, तो इस केस में x भी नेगेटिव हो जाएगा, y भी नेगेटिव हो जाएगा, उसको आप करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो अब मैं वो चीज डायरेक्टली लिख रहा हूं स्टूडेंट, ठीक है। 2 हो गया, अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट देखो, थर्ड क्वाड्रेंट यहां से यहां तक है ना, तो ये वाला एंगल 180 और ये हो गया देखो 90 90 90 90, तब जाके 360 बनता है ना। तो यहां से यहां तक 90 से 180,
यहाँ से 180 से 270, तो इसमें जो एंगल होता है वो 180 से 270 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। बहुत सिंपल है। अरे एक क्वाड्रेंट में एंगल 90 बनता है, तो 90 कितना हो गया 180, फिर 180 से 270 एंड 270 से 90 360। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है स्टूडेंट, अब मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं, इन थर्ड क्वाड्रेंट ओनली, अब इसमें क्या होता है tan थीटा and cot theta will be positive and sin theta cosec theta cos theta sec theta will be negative, ओके ठीक है। ऐसे ही जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड के लिए बताया वैसे ही आप थर्ड और फोर्थ में भी करके कर सकते हो। बस पॉइंट आपको यहाँ पॉइंट लिया तो यहाँ पी ले लेना, उस केस में दोनों एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ऐसे ही फोर्थ में ले लेना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बस क्या पॉजिटिव रहता है 10 और उसका रेसिप्रोकल मतलब कि कॉट। तो यहाँ पे ए था मतलब ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन था तो साइन एंड कोसेक, यहाँ पे 10 और कॉट, और लास्ट क्वाड्रेंट बच गया हमारा, मैंने आपको बताया था ना एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है जनरली। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां तक होगा 270 से लेकर 360 तक, ठीक है। ये 270 था, अरे ये 90 डिग्री होगा, यहां से यहां तक 90, फिर 180, फिर 270, देन 360, तब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, इन फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली cos थीटा एंड sec थीटा will be positive and sin theta cosec theta tan theta cot theta will be negative, ठीक है। देखो पहले में सभी पॉजिटिव थे, दूसरे में साइन कोसेक पॉजिटिव था, इसमें टेन और कॉट और इसमें कॉस और सेक, ठीक है। तो जैसे आप मैंने फर्स्ट और सेकंड के लिए बताया वैसे ही थर्ड और फोर्थ के लिए भी होगा, ठीक है। तो मैंने दो से समझा दिया कि कैसे साइन चेंज हो रहा है। यहाँ पे जो बात आई रेडियस की, तो रेडियस हमेशा पॉजिटिव ही लेना है हम लोगों को, ठीक है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो साइन होता है वो उसके टर्मिनल साइड पे डिपेंड करता है कि टर्मिनल साइड किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। यहाँ पे टर्मिनल देखो, ये तो हमारी बेस लाइन थी ना, ये हमारा टर्मिनल साइड ये था, उसके बाद टर्मिनल साइड ये है, फिर ऐसे ही नीचे होगा, फिर ऐसे ही इधर होगा, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक। इसी रूल को स्टूडेंट बोलते हैं एएसटीसी रूल। दिस रूल इज नोन एज द एएसटीसी रूल टू डिटरमाइन द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। मैंने आपको याद होगा अगर, तो मैंने आपको क्लास 10th में बताया था कि एक एएसटीसी रूल होता है, दैट इज जो बताता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन क्या होगा डिफरेंट क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसी को बोलते हैं एएसटीसी रूल। अब एक काम करो आप समझने के लिए डायरेक्टली क्या करो, अगर ये कंप्लीट हो गया हो तो सी, मैं इसको फिर से बना रहा हूं। Now see, x o x dash y o y dash, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, इसमें आपको पता है ना प्लस प्लस साइन होता है, इसमें माइनस प्लस साइन होता है, इसमें माइनस माइनस और इसमें प्लस माइनस, ठीक है। This is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, this is fourth quadrant.
तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखना है ऑल। ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव, पहले क्वाड्रेंट में जो भी आएंगे वो क्या होंगे, पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे। दूसरे में क्या लिखना है, एस, ठीक है, बिकॉज इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, साइन और उसका रेसिप्रोकल। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक। तो इसी रूल को बोलते हैं स्टूडेंट ASTC रूल। इसका एक शॉर्टकट भी है, शायद बुक में दिया हुआ है, कैसे इसको याद रखोगे, ऑल स्कूल्स टू कॉलेज, ठीक है। याद करने का तरीका है ऑल स्कूल्स टू कॉलेज। ऑल मीन्स फर्स्ट, स्कूल मीन्स सेकेंड, टू मीन्स थर्ड, कॉलेज मीन्स फोर्थ। तो ऑल मीन्स पहले में सारे पॉजिटिव, स्कूल में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव, टू में टेन और कॉट, और कॉलेज में कॉस और सेक। तो इसी को बोलते हैं ASTC रूल, टू डिटरमाइन द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो फर्स्ट यू ड्रॉ इट, ओके। ठीक है स्टूडेंट, सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि साइन कैसे चेंज हो रहा है। मैंने आपको मेथड करके बताया। देखो जब मैंने रेडियस को सर्कल बनाया था, वहां पर रेडियस 1 यूनिट लिया था ना, आप उसके लिए आप आर भी लिख सकते हो, रेडियस को आप आर भी मान सकते हो, लेकिन इतना ध्यान देना कि आर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे वो किसी भी क्वाड्रेंट में होगा वो पॉजिटिव ही होगा। बस वाई और एक्स चेंज होता है क्वाड्रेंट के हिसाब से, पहले में वाई और एक्स दोनों पॉजिटिव, दूसरे में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव, और चौथे में x पॉजिटिव y नेगेटिव, ओके। सो दिस इज नोन एज द ट्रिग्नोमेट्रिक साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ओके। इसको हम लोग ASTC रूल भी बोलते हैं मैथ्स में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना चाहिए। और बेसिकली आपके 12th क्लास 11 12 के सिलेबस में कहीं भी प्रूफ नहीं आता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में कहीं भी नहीं आता है। तो जो पॉसिबल होगा वो प्रूफ मैं कराऊंगा आपको, और अभी जो नहीं हो पाएगा वो हम लोग रिवीजन में करेंगे, नहीं करेंगे सारा, जिससे आपको पता तो चले कि कौन सी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, ठीक है। आप केवल रट नहीं सकते किसी चीज़ को कि ये चीज़ हाँ ये ऐसे होता है, ये ASTC रूल है, तो इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें केवल साइन पॉजिटिव, इसमें केवल 10 और इसमें कॉस, ऐसे नहीं। आपको पता होना चाहिए कि हाउ दे आर डूइंग देयर फंक्शनिंग, ओके, हाउ द साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंजेस इन द डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, ओके। सो यू शुड नो। सो एक चीज़ हम लोग का कंप्लीट हुआ। In the next part of the video student, I will tell you, आपने अभी तक केवल sin 90 तक या cot 90 तक 90 डिग्री तक सबकी वैल्यूज आपको पता है, लाइक sin 30, sin 60, sin 45, sin 90। आपको 90 की आगे नहीं पता है कि आगे क्या होता है, ठीक है। तो आगे कैसे वैल्यू चेंज होती है, कितनी वैल्यू होती है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी के जो मैं क्लासेस पढ़ाऊंगा आपको, 3 से 4 क्लास केवल हम लोग टॉपिक्स को कवर करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टू आवर एक्सरसाइज 3.2। सो डोंट स्किप अ सिंगल क्लास स्टूडेंट, ओके, बिकॉज अगर आप कोई भी स्किप कर दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं हैं, ये आपने पहले पढ़ा नहीं है, ओके। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। द रिमेनिंग थिंग्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। सो टिल देन स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।